بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 100 پلس اور میں ہوں احمد الدین قاسمی۔ خواتین و حضرات، پاکستان کی بدقسمتی کہہ لیں کہ یہاں پہ جتنے بھی سانحات، واقعات، ایشوز بنے ہیں، ان کے حل اور ان کے ذمہ داروں کو بے نقاب کرنے کے لیے جتنے بھی کمیشن آج تک بنے ہیں، حمود الرحمان کمیشن سے لے کر آخری کمیشن ایک بنا تھا جسے JIT کا نام دیا گیا تھا، یہ سارے کے سارے متنازع بھی بنے اور پلس کہ آج تک صحیح معنوں میں ان کی رپورٹ آ ہی نہیں سکی کہ جس کے ذریعے ان سانحات، ان واقعات اور ان ایشوز کا پتہ چل سکے کہ اس کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے اور ان کے ذمہ داران کون تھے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ جتنی اسکیمیں آئی ہیں پاکستان میں، بھٹو صاحب سے لے کے شہباز شریف کی حکومت تک جتنی بھی اسکیمیں آئی ہیں وہ بالآخر اسکیم بن کے رہ گئی۔ اسی طرح آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی، ہر شخص کی اور ہر پاکستانی کی۔ 70 کی دہائی میں بھٹو صاحب نے سستی روٹی اسکیم متعارف کرائی، جس کا پلانٹ جو ہے اٹلی سے منگوایا گیا تھا۔ وہ خود کار مشین روٹی تیار کرتی تھی اور اس کے پیکٹ میں 4 سے 5 روٹیاں ہوتی تھی کہ جن کو اگر وہ یعنی کہ ایک ہفتہ یا 2-4 دن آپ ان کو رکھ بھی لیں تو وہ خراب نہیں ہوتی تھی، اس کو دوبارہ گرم کر کے یا ہلکا سا گھی لگا کے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ عوام خاصی چلے کہ کچھ سہولت ملی انہیں، اور یہ لوگ جو عوام تھے، عام آدمی تھا، اس کا خرچہ کافی بچنا بھی شروع ہو گیا تھا۔ لیکن جو ہمارا شروع کی دن سے المیہ رہا ہے کہ اس سکیم کو سکیم بنا دیا جب مافیا انوالو ہوئی، فلور مل ایسوسی ایشن، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف فلور ملز مالکان کو تھی، اور آٹا مافیا جو تھا وہ انہوں نے حشر کیا سستی روٹی سکیم کا کہ بھٹو صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگا دیا کہ آج کے بعد یہ نعرہ، یہ کام میں نے نہیں کرنا کہ عوام کو ریلیف دینے کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن سے پردہ پوشی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے جو نوجوان ہیں ان کے علم میں یہ باتیں نہ ہوں۔ اس کے بعد آپ خادم اعلیٰ صاحب میاں شہباز شریف صاحب کو لے لیں کہ جس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے، یہ غالباً 2013 کی بات ہے، انہوں نے وہی سلوگن جو پیپلز پارٹی کا تھا، بانی پیپلز پارٹی، شہید عوام اور قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے، جنہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا، اسی کو نون لیگ جو ایک روایتی حریف ہے پیپلز پارٹی کی، وہ آگے لے کے چلی اور شہباز شریف صاحب نے اس پہ ورک شروع کیا۔ انہوں نے فیزیبلٹی تیار کی اور سستی روٹی سکیم کا آغاز شروع کر دیا۔ یہ شہباز شریف کے دور میں جو روٹی کی قیمت تھی وہ 2 روپے فی روٹی تھی، یعنی کہ 2 روپے میں ایک روٹی عام آدمی کو ملتی تھی، اور یہ دور تقریباً ہر نوجوان اور ہر جو اس وقت میرے ہم عمر لوگ ہیں یا بوڑھے ہیں، یہ سب کے علم میں ہے، کیونکہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ یہ 2013 کی بات ہے، 13 کا واقعہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے سستی روٹی سکیم شروع کی، لیکن ہوا کیا کہ تندور مالکان جو تھے، اس میں بھی پلانٹ باہر سے منگوائے گئے اور بعد ازاں یہاں بھی تیار ہوئے۔ یہ سکیم شروع ہوئی اور 27 ارب روپیہ جو قومی خزانے سے پنجاب حکومت نے
कौमी खजाने का 27 अरब रुपया तंदूरों में झोंक दिया या जला दिया कह दिया, लेकिन उसका कोई खातिर खा फायदा बहरहाल नहीं हुआ आवाम को, कि आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो उससे कोसों दूर था, बल्कि सालों दूर था। कोस भी नजदीक होता है, कई सालों पे मुहित था कि कई साल का फासला था। आम आदमी को सुख का सांस नहीं आया। उल्टा क्या हुआ कि खजाने के 27 अरब रुपए तंदूर में जला दिए। यहां पे भी हुआ वही जो भुट्टो साहब के दौर में हुआ कि फ्लोर मिल मालकान जो थे, सबसे ज्यादा जाहिर है इन्हें तकलीफ होनी है। और ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो फ्लोर मिल मालकान है या फ्लोर मिल्स का जो एनओसी होता है, वो सियासी कोटे पे सियासी भर्तियां जो होती हैं, हर हुक्मरान अपने मनपसंद अपने अजीज रिश्तेदारों को एनओसी से नवाजते हैं फ्लोर मिल्स के। और बेशतर फ्लोर मिल्स जो हैं ये हमारे नामवर जो पॉलिटिशियन हैं इनकी हैं। अगर उनका नाम लिया जाए तो गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। सो ये मामला फिर कभी पे उठा रखते हैं। आज का हमारा मौजू यही है कि सस्ती रोटी जो है ये मंसूबा काबिल अमल तो है, अगर इस मंसूबे को मंसूबे की रूह के मुताबिक किया जाए कि जो हकाइक हैं। अब हालत ये है कि 27 अरब रुपया जब तंदूर में झोंका गया, जला दिया गया, हुआ गया कि जो फ्लोर मिल्स मालकान थे, इन लोगों ने इस निज़ाम को फेल करने का मंसूबा बनाया ताकि उनका आटा मन चाहे मन माने और दुगना रेटों पर बिकता रहे, जो कि उस वक्त 2 रुपए का जो रोटी थी उसके बाद से इन्हें खासा नुकसान भी हुआ। आटा इनसे खरीदता कोई नहीं था। जाहिर है कि एक पक्की पकाई रोटी जब आपको तंदूर से 2 रुपए की मिल रही हो तो कौन फिर जो है महंगा आटा खरीदे और उसे पकाए। सबसे पहली फुर्सत में इन्होंने किया क्या, फ्लोर्स मिल मालकान जो थे उन्होंने जो आटा हुकूमत को फराहम करना शुरू किया वो इंतहाई नाकस, घटिया और गैर म्यारी था, जिसका नुकसान क्या हुआ कि जो आम सारिफ था, जो रोटी का खरीदार था, वो बदजन हुआ। और जाहिर है जब आपके बच्चे रोटी सही तौर पे नहीं खा सकेंगे, आप भी उसको सही टेस्ट और सही मजे के साथ इंजॉय नहीं कर सकते, तो फिर भले चीज सस्ती हो उसका खरीदार मार्केट में नहीं मिलता। तो पहली फुर्सत में और पहले स्टेप पे फ्लोर्स मिल जो मालकान थे उन्होंने गैर म्यारी आटा फराहम करना शुरू किया। उसके बाद फिर हुआ क्या कि जो तंदूर माफिया था, जितने पंजाब भर में तंदूर थे वो तो है थे, उसके अलावा इजाफी जो सरकार के और पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन से, उनके एनओसी से जो नए तंदूर वजूद में आए, वो असल इन्हीं के लोग थे जो हमारे मुख्तलिफ अजला में पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में कह लें, क्योंकि पंजाब का मंसूबा था, पूरे पंजाब के 36 अजला जो थे उनमें जो तंदूर बने हैं उनके पीछे उनके दूसरे स्टेप पे अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें या इसकी रिपोर्ट्स जो है पढ़ें, इस पे जो लोगों ने अपनी राय दी, खबरें दी और तज्जिए किए, आपको ये बात खासी मुश्किल नहीं है जानना कि इनके तंदूर जो मालकान थे, इनके दूसरे स्टेप पे नून लीग के जो एमएनएस थे और एमपीए से वो लोग खड़े थे। ये जिला इंतजामिया, तहसील लेवल की इंतजामिया इनके पीछे मौजूद थी, जिन्होंने अच्छा खासा जो है माल अंदर किया है, माल कमाया है। क्योंकि उधर से जो पैसे मिलते थे वो हड़प कर जाते थे ये लोग और यहाँ पे शो करते थे कि जी आज हमने इतनी रोटी बेची है, उसके हिसाब से इन्हें पैसे तंदूर मालकान को मिलते थे। तो दूसरा एक और तरीका कार भी था कि आटे का जो कट्टू है
जो बोरी होती है, थैला होता है आटे का, वो अलाउ थे कि फलां तंदूर को इतने मिलेंगे। ये लोग करते क्या थे, एक थैले की जो है रोटी पका के इन्होंने सेल आउट कर देनी, और बाकी का आटा जो है वो फ्लोर्स मिल मालकान को फरोख्त कर देते थे। अब यानी कि उन्हीं का आटा उनको वापस चला जाता था चंद सिक्कों के, चंद रुपयों के इवज। तो हुकूमत से भी पैसे कमा जाते थे फ्लोर मिल मालकान, और तंदूर वालों से दोबारा आटा वही परचेज कर लेते थे। तो ये सूरत हाल थी। इसको हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ ने इसकी सही रूह के मुताबिक इस मंसूबे को पे अमल दरामद नहीं किया, जिसके बायस ये नाकाम हुआ, फेल हुआ। अब ये दो वाकयात ऐसे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हमने आपके गोश गुजार किया, और शहबाज शरीफ साहब जो कि उस वक्त वज़ीर आला थे पंजाब, इन दोनों शख्सियात के, इन दोनों अदवार के मंसूबों की नाकामी के बावजूद मरियम नवाज साहिबा ने ये स्कीम दोबारा शुरू की है, सस्ती रोटी, और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि 20 रुपए की बजाय रोटी 16 रुपए की फरोख्त की जाए। और आप तमाम लोगों ने देखा होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा दोनों ही एक तंदूर पे गए थे, और वहां उनसे रेट भी पूछा, और उसका जो है रोटी अपने सामने पकवा कर भी देखी। ये तो सबके इल्म में है, लेकिन ये भी तमाम लोग जानते हैं जो हमारी गुफ्तगू में शरीक हैं, सुन रहे हैं या हमें देख रहे हैं, कि अभी तक किसी भी जिले में ऐसा तंदूर किसी को नजर नहीं आया जो 16 रुपए की रोटी दे। अब ये वो बातें हैं, ये वही मंसूबे हैं जो माजी में भी नाकाम और फेल होते रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान हैं कि बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, बार बार वही नाकाम मंसूबे दोबारा से लॉन्च कर देते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है दोबारा मंसूबे को लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन कम अज कम ऐसा तो हो कि माजी में, गुज़िश्ता अदवार में जिन वजूहात के बायस वो मंसूबे नाकाम और फेल होते रहे हैं, कम अज कम उन पे तो काबू पा लिया जाए, ताकि आपका जो मंसूबा पुराना ही है लेकिन नया लॉन्च करता है, वो कम अज कम आज के दौर में नाकामी कबू न देखे। लेकिन इन लोगों को समझ ये नहीं आती कि इनको आप फिजिबिलिटी एक बनाते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि आपके होते हुए, आपके इक़्तिदार में रहते हुए, उस मंसूबे की जो असल रूह है, जो सही रूह है, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता और कैसे नहीं हो पाता? ये वो सवाल है जो हम छोड़े जा रहे हैं आप तमाम अपने नाजरीन के पास और हुक्मरानों के पास, कि खुदारा कम अज कम सोचें कि जो माजी के मंसूबे जिन वजूहात पर, जिन मुहर्रकात पर नाकाम हुए, उन पे जो है उनको दूर क्यों नहीं किया गया। तो ये आज की हमारी एक छोटी सी गुफ्तगू थी। उम्मीद है आपको हमारा मौजू पसंद आया होगा। ख़वातीनो हज़रात, चलने से पहले, अल्लाह हाफिज कहने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल 100+ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस के जरिए आपका हमारा राब्ता रह सके। ख़वातीनो हज़रात, अपने दोस्त, अहबाब, अजीज रिश्तेदारों के लिए दीवार बने, दरवाज़ा मत बने। अल्लाह हाफिज।